Once again, let me remind you, beta, water soluble और fat soluble. Fat soluble में आपको toxicity ज़्यादा मिलेगी because they tend to accumulate more. They tend to accumulate more. ज़्यादा होने से toxicity symptoms बेटा ज़्यादा मिलेगी. Water soluble में क्या होता है? They are more prone to deficiency symptoms. They are more prone to deficiency symptoms. Why? Because they are eliminated. If they are more, they gets eliminated. Okay? They are very prone to that. That is why water soluble vitamins have to be continuously supplied in diet. Okay? Continuously. So, this is the first case. A 45-year-old chronic alcoholic male presents to emergency department with complaints of progressive weakness, memory disturbances and difficulty walking for past 1 month. His relatives report that he has become increasingly disoriented and confused. Disoriented and confused. Often forgetting recent events. They also note that he has episodes of unsteady gait and frequent falls. Unsteady gait and frequent falls. On physical examination, the patient is disoriented to time and place. His gait is broad-based and unsteady. Neurological examination reveals bilateral horizontal nystagmus, weakness in both lower limbs, and absent ankle reflexes. Absent ankle reflexes. Laboratory investigations बेटा क्या रिवील करें? देखो, जब हमने लैब से रिपोर्ट मंगाई तो क्या है? हीमोग्लोबिन इज कितना है? कम है कि ज्यादा है? थोड़ा सा कम, स्लाइटली कम, थोड़ा सा. 14 to 16 होता है. Many lab prefer 14 to 16 for males and 13 to 15 for females. But as for lifestyle, beta, this has become a new normal now. Why? हमारी डाइट में बेटा लेड बहुत बढ़ता जा रहा है. क्या बढ़ता जा रहा है? लेड. एंड दैट इज डिप्रेसिंग आवर बोन मैरो. ब्लड ग्लूकोज कितना है बेटा? 92 mg/dl. जब कुछ नहीं लिखा होता ना, कुछ नहीं, वी टेंड टू एज्यूम इट इज फास्टिंग. Then serum electrolytes normal. Liver function test बेटा, AST, ALT कितना है? 76 and 52. These are also normal. Although AST level थोड़ा सा elevated, बिल्कुल slightly, but it can be considered normal. Then serum B12, serum 400 picogram per ml, which is normal. क्या अभी तक बेटा प्रिलिमिनरी आपको लग रहा है ये है? किसकी डेफिशिएंसी से बेटा ये डिसऑर्डर हो रहा है? बी. वाई B1? इट इज विटामिन B1 डेफिशिएंसी बेटा. आप लोग पेपर में भी पढ़े हो ये देखो, प्रोग्रेसिव वीकनेस, मेमोरी डिस्टर्बेंस, डिफिकल्ट वॉकिंग, बेटा यहीं पकड़ लेना चाहिए था. What are the symptoms of vitamin B1 deficiency? Severe vitamin B1 deficiency बेटा गेट चेंज हो जाता है उसमें. याद आया? For past 1 month, and relative report that he has become increasingly disoriented and confused. Disoriented and confused. और ये देखो, 45-year-old chronic alcoholic. Chronic alcoholic, gait is not perfect, and he has memory loss. It is vitamin B1 deficiency, but even in that, what it is? It is Wernicke-Korsakoff syndrome, beta. This is a case for Wernicke-Korsakoff syndrome यार. ये देखो, chronic alcoholic है. क्या है? Chronic alcoholic. Then progressive weakness, memory disturbance and difficulty in walking. तो क्या है ये? This is Wernicke-Korsakoff syndrome. ये देखो, what is the most likely diagnosis of this patient? The most likely diagnosis is Wernicke's encephalopathy due to vitamin B1 deficiency, commonly seen in chronic alcoholics. Commonly seen in? Why vitamin B1 is deficient in chronic alcoholic? Explain. This has been thoroughly explained in lecture classes. Why? Explain. Convert नहीं बेटा. Those who are chronic alcoholics, it blocks
It blocks or hinders absorption of thiamine from intestine. thiamine. बेटा thiamine उसकी फ्री फॉर्म होती है, कौन सी फ्री फॉर्म? उसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है? इट इज TPP, thiamine pyrophosphate. एक्टिव और कोएंजाइम फॉर्म इज TPP. एब्जॉर्ब बेटा इज थायमीन नहीं होता दीक्षित, थायमीन ही एब्जॉर्ब होता है. What are the classical triad of Wernicke's encephalopathy? Classical triad of Wernicke's encephalopathy consists of first one ophthalmoplegia or nystagmus. इसे nystagmism भी बोलते हैं. दानिश भाई में जो एन आता है ना बेटा, वो nystagmism ही है. डिस्काइनेजिया, एटेक्सिया, निस्टैग्मिज्म बताया था ना, वो क्लासिकल सिम्टम दानिश भाई वाले. इन दिस केस द पेशेंट हैज हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस. पता क्या होता है? ये होता है, जैसे मान लो आप विंडो से बाहर कहीं देखते हो, आप किसी सफ़र पे जा रहे हो, विंडो से बाहर देखते हो, ठीक. आप प्रोग्रेसिवली अगर बाहर देखेंगे ना, तो बेटा जो आपका विजन होता है, अगर आप इधर हटेंगे तो वो ऐसे से हिलेगा नहीं, इट रिमेन स्टेबल. बट इन निस्टैग्मस और निस्टैग्मिज्म बेटा ये ऐसे मूव करता है, ठीक है. देन एटेक्सिया, द पेशेंट हैज ब्रॉड बेस्ड अनस्टेडी गेट. समझ रहे हो? ब्रॉड बेस्ड अनस्टेडी गेट, ऐसे इज नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली. ऐसा हम अपना पैर कैसे रखते हैं बेटा? कॉन्फिडेंटली रखता है, क्योंकि ये आवर movements would be very well coordinated. ठीक है? Our movements would be very well coordinated, and this unsteady gait is also due to peripheral neuropathy. जो नर्व डिजेनरेट होती जाती है ना बेटा, थायमीन की डेफिशिएंसी में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, द नर्व्स गेट स्लोली डिजेनरेटेड और देयर इज न्यूरोपैथी. तो बेटा उसकी वजह से भी ना ही कैन नॉट कोऑर्डिनेट दीज थिंग्स प्रॉपरली. दैट इज व्हाई द गेट स्टेडीली चेंजेस. Then confusion. The patient is disoriented to time and place. Okay? What is the underlying pathophysiology of this condition? Answer. Thiamine is essential for glucose metabolism and acts as cofactor for enzyme like pyruvate dehydrogenase, alpha ketodehydrogenase and transketolase. थायमीन का बेटा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कहाँ काम आता है? ये देखो, ये क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस. क्या है ये? दिस इज अ एंजाइम. कहाँ यूज होता है? टू कन्वर्ट पायरुवेट इनटू सिटाइल को एंजाइम है बेटा. फिर आगे क्या है ये? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस. बेटा ये कहाँ का एंजाइम है? TCA साइकिल. कहाँ का? TCA साइकिल. देन दिस वन इज ट्रांसकीटोलेज. कहाँ पढ़ा है ये? कहाँ पढ़ा है ट्रांसकीटोलेज? और कहीं नहीं पढ़ा बेटा. ट्रांसकीटोलेज 2-3 जगह आता है. ट्रांसकीटोलेज हैज मेनी एप्लीकेशंस. वन इज देयर इन HMP शंट, पर कहीं और पढ़ा है? पूरा मेटाबॉलिज्म हो गया. अब देखना आप लोग जो हो, ध्यान रखो यार, सब चीज का ऐसा नहीं होगा. इन डेफिशिएंसी ATP प्रोडक्शन इज इम्पेयर्ड. ATP प्रोडक्शन इज इम्पेयर्ड लीडिंग टू न्यूरोनल डैमेज, particularly in areas with high metabolic demand like mammillary bodies, thalamus and periaqueductal gray matter. This results in neuronal dysfunction causing confusion, ataxia and ocular abnormalities. ये जो होता है ना बेटा, these are very sensitive area for brain. These are very sensitive areas of brain. Thalamus क्या होता पता है? Thalamus is somewhat central part of the brain. इसका जो फ्लोर होता है ना, इसका नाम बड़ा जाना पहचान होता है, उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं. तो बेटा अगर यहाँ पे आपका डैमेज होगा ना इन एरियाज में, तो बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत सिग्निफिकेंट डैमेजेस होंगे बॉडी को. ठीक है?
इसीलिए थायमीन की डेफिशिएंसी से आपको ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं, कंफ्यूजन, एटेक्सिया, ऑक्यूलर एबनॉर्मेलिटीज। सिमिलरली बेटा पीएनएस में जो नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट इन पीएनएस, या आपकी नर्व्स जो हैं, दे आर ऑल्सो मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव। अगर थायमीन की डेफिशिएंसी होगी तो उनकी एनर्जी की डिमांड्स भी कंप्लीट नहीं होंगी। कंप्लीट रिजल्ट क्या रहेगा? स्लोली एंड स्टेडीली बेटा उनका फंक्शन धीमा हो जाएगा। कहीं कहीं क्या होगा बेटा, बिल्कुल ही एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो वो सेल क्या होंगे? दे विल स्टार्ट टू डाई। इसीलिए क्या होता है बेटा, वो न्यूरोपैथी होने लग जाते हैं, वो सेंसेशन जाने लग जाती है। 1 cell, 2 cell, eventually that whole area is damaged, the whole nerve area is damaged there. तो उस पूरे एरिया पे बेटा सेंसेशन चली जाती है। That is why peripheral neuropathy occurs। ठीक है, आगे देखो, what are the risk factors for vitamin B1 deficiency? क्या है बेटा? chronic alcoholism। chronic बेटा रिस्क फैक्टर समझ तो आप, रिस्क फैक्टर क्या होता है? जो लोग क्रॉनिक एल्कोहलिक होते हैं ना, उनमें थायमीन की डेफिशिएंसी होने का चांस बढ़ जाता है, होने का चांस बढ़ जाता है। ओके, ज़रूरी नहीं है दोज हु आर क्रॉनिक एल्कोहलिक्स उनमें थायमीन की डेफिशिएंसी हो ही, लेकिन जो क्रॉनिक एल्कोहलिक्स हैं उनमें थायमीन की डेफिशिएंसी बढ़ जाती है, चांस उसका होने का बढ़ जाता है। देन माल न्यूट्रिशन, एनोरेक्सिया नर्वोसा, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, ओके, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, एग्जांपल बेरिएट्रिक सर्जरी। किसके लिए होती है बेरिएट्रिक सर्जरी, पता है? सुना है बेरिएट्रिक सर्जरी? नहीं सुना? फैट निकालने के लिए जो होता है बेरिएट्रिक सर्जरी, वजन वगैरह कम करना होता है ना, तो फैट निकालता है ना, वो वाली। Then chronic illness like HIV, AIDS, cancer, these are all risk factors beta. Prolonged intravenous glucose without thiamine supplementation, example in critically ill patients. ग्लूकोज का सप्लीमेंट चढ़ाता है बेटा एकदम से, ड्रिप लगाता है, अगर वो प्रोलॉन्ग चलती रहे ना तो थायमीन की भी डेफिशिएंसी होने लग जाती है। वी हैव टू सप्लाई थायमीन इन टेंडम, और इनफैक्ट थायमीन पहले दिया जाता है, थायमीन पहले दिया जाता है, क्योंकि बेटा जो पेशेंट लेटा है ना वो खाना नहीं खा रहा, ही इज जस्ट ऑन दैट ड्रिप एंड ग्लूकोज, सो यू हैव टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी सप्लीमेंट टू दैट। ओके, देन व्हाट इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन? इंट्रावेनस थायमीन, ये देख लो बेटा, ये इसकी डोज होती है 500 mg for 2 days, then 200 mg daily for 5 days, followed by oral thiamine supplementation 100 mg per day. Administer thiamine before glucose to prevent worsening neurological symptoms. Okay, giving glucose first can precipitate Wernicke's encephalopathy, जो मैं बता रहा था। ग्लूकोज पहले दे दोगे, थायमीन सप्लीमेंटेशन बाद में दोगे, तो दैट कैन इंक्रीज दोज सिम्टम्स। ठीक है, थायमीन तो पहले ही देना पड़ेगा, और अगर वर्निकेज कोरेस्कॉफ सिंड्रोम का पेशेंट है तो बेटा थायमीन सप्लीमेंटेशन पहले ही चलेगा। ठीक है, देन करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, स्पेशली मैग्नीशियम, एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर थायमीन एक्टिवेशन। थायमीन की एक्टिव फॉर्म क्या होती है बेटा? थायमीन पायरोफॉस्फेट, थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो थायमीन में क्या जुड़ रहा है? 1 फॉस्फेट ग्रुप। बेटा पायरोफॉस्फेट ऐसा कुछ नहीं होता, 1 फॉस्फेट ग्रुप, 1 फॉस्फेट ग्रुप। वो फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन के लिए ना बेटा व्हाट इज रिक्वायर्ड एज कोफैक्टर, इट इज मैग्नीशियम, इट इज मैग्नीशियम। क्या चाहिए? मैग्नीशियम। आप ग्लूकोज चढ़ा दीजिए, थायमीन सप्लीमेंट दे दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा इफ यू आर नॉट गिविंग मैग्नीशियम इन टेंडम विद थायमीन सप्लीमेंट्स, क्योंकि थायमीन बेटा अपनी एक्टिव फॉर्म में काम करेगा। किसमें? एक्टिव फॉर्म में काम करेगा, और एक्टिव फॉर्म कब होगी? when 1 pyrophosphate group is attached. Which group? Pyrophosphate group is attached. And how is that group attached? It requires magnesium as cofactor. Magnesium as cofactor.
Then supportive care including hydration and nutrition. And what are the potential complications if left untreated? Korsakoff syndrome. Irreversible antegrade amnesia with confabulation. Korsakoff syndrome पता था ना, जब वर्निकेज सिंड्रोम आपका या वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी आपकी प्रोलॉन्ग चलती है, एकदम प्रोलॉन्ग, इफ it is untreated for a long time, it translates into Korsakoff syndrome. Translates into Korsakoff syndrome, which is irreversible condition. Persistent ataxia, neurological deficits, coma and death in severe cases. कोमा में क्यों जाएगा बेटा, सोचो. There would be damage to sensitive areas of the brain which are very, very metabolically active. There are certain areas of the brain which have very high metabolic activity, Can you name a few? The region which are in the brain stem na, brain stem, those medulla. Why? Because it has very vital centers there. बहुत सारे vital centers होता है वहाँ पे. सेरिबेलम मत लिख देना बेटा, ठीक है. हाँ, पॉन्स. रीजन्स विच आर कंप्राइजिंग ऑफ ब्रेन स्टेम, दे आर रिलेटिवली हाई मेटाबॉलिक डिमांड. ठीक, रिलेटिवली हाई. बाकी टिश्यूज से थोड़ा सा ज़्यादा होती है ब्रेन के. अगर बेटा वहाँ पे एनर्जी डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पे थायमीन की कंजम्पशन भी तो ज़्यादा हो रही होगी. देयर वुड बी मोर थायमीन कंजम्पशन देयर बिकॉज एनर्जी डिमांड इज मोर. अब बेटा अगर थायमीन की कमी है बॉडी में, किसकी? थायमीन की कमी है, तो सबसे पहला डैमेज का असर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? उसी ब्रेन स्टेम वाले एरिया में, इन दैट ब्रेन स्टेम एरिया. एंड व्हाई ब्रेन डैमेज टू दैट ब्रेन स्टेम इज वेरी वेरी डेंजरस? बिकॉज दैट कंप्राइजेज वेरी वाइटल सेंटर्स which coordinate all of your जिसे कहना चाहिए बॉडी एक्टिविटीज, योर हार्ट रेट, योर ब्रीदिंग रेट, योर ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग इज बेटा कंट्रोल्ड फ्रॉम दैट साइड. तो सोच लो कितना सीवियर डैमेज होगा अगर थायमीन की कमी रही तो. कमी ऐसा नहीं आपने एक दिन थायमीन डाइट में नहीं लिया तो कल से आप निकल ली, नहीं. persistent, which is persistent, like seen in chronic alcoholics. जिससे क्या हो रहा है बेटा? Wernicke's encephalopathy. And if Wernicke's encephalopathy is untreated, what it translates into? Korsakoff syndrome. तो बेटा इसको जोड़ के बोल देता है Wernicke's Korsakoff syndrome. इसीलिए बेटा कोमा और डेथ होता है सीवियर केसेस में, ठीक है. And there is damage done to high intensity centers, ठीक है, बहुत वाइटल सेंटर्स में जब डैमेज होता है. How can this condition be prevented in high risk patients? Routine thiamine supplementation in chronic alcoholics and patients on prolonged glucose or TPN, total parenteral nutrition. Early recognition and treatment of nutritional deficiency in hospitalized patients. तो ट्रीटमेंट क्या है इसका? जो chronic alcoholics हैं, क्या है? Chronic alcoholics, we have to supply them with thiamine supplements. आपके और मेरे में भी बेटा थायमीन की डेफिशिएंसी हो सकती है. मेरे में थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, मेरे में चांस ज़्यादा है. Why? Because I do not prefer meat or eggs, ठीक है. और बेटा अगर मैं राइस की डाइट लेता हूँ and it is polished rice, तो बेटा उसमें भी दिक्कत ज़्यादा होती है. ओके, those people जो उस डाइट पे ज़्यादा रहते हैं ना, they are more prone to thiamine deficiency. जो polished rice ज़्यादा खाते हैं. Those who have non-vegetarian diets, they can get supplements from that. Adequate supplements उन्हें मिल जाते हैं. But those who are like me, हम लोग ज़्यादा prone है thiamine deficiency के, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. A 25-year-old male presents to the dermatology clinic with complaints of painful cracks at corners of his mouth, a burning sensation in his tongue, and occasional sore throat for past 3 weeks. He also reports mild fatigue and photophobia. Please, let the question be finished.
On examination, there are angular fissures at the corners of his mouth, a swollen and reddened tongue, and mild seborrheic dermatitis-like lesions on the nasolabial folds. Now, what is the most likely nutritional deficiency in this patient? बोलिए, किस विटामिन की बेटा इसमें डेफिशिएंसी आपको लग रही है? It is FADH2 and FMN, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. ओके, FMN होता है, FAD होता है, FADH2 होता है, FADH कुछ नहीं होता. क्या आया बेटा डायग्नोसिस इसका? क्या? B2 deficiency. पक्का? Why it is B2 deficiency? Who will explain? Corner of? Yes, good. बेटा यहाँ पे these are the areas which get fissures in vitamin B2 deficiency. B2 deficiency. क्या नाम होता है बेटा B2 का? राइबोफ्लेविन. एक्टिव फॉर्म क्या होती है बेटा इसकी? अभी मैंने इसको बताया था. व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म फॉर राइबोफ्लेविन? FAD और हाँ FMN और FAD होती है ना, FADH2. This is the active form for riboflavin. Active form for, by active form I mean to say it is coenzyme form. It is coenzyme form. Active form और coenzyme form means one and the same thing. Active form का काम क्या होता है? काम करना ही तो होता है. सबसे पहले क्या देखा हमने? विटामिन B1. क्या नाम था? थायमीन. एक्टिव फॉर्म थायमीन पायरोफॉस्फेट. कौन सा मेटल आयन रिक्वायर्ड था बेटा उसके लिए? कौन सा? मैग्नीशियम. तो थायमीन का सप्लीमेंट चढ़ाना है बेटा, ग्लूकोज को देना है, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ड्रिप में मैग्नीशियम का सप्लीमेंट भी डालते रहिएगा. एल्स यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन. थायमीन से कुछ नहीं होने वाला. ओके, नाउ इसमें किसकी डेफिशिएंसी है? विटामिन B2. क्या नाम है? राइबोफ्लेविन. क्या नाम है? एक्टिव फॉर्म. हमने डायग्नोस कैसे किया बेटा? यहाँ पे देखो, यहाँ से पता लग जाना चाहिए था आपको. ये देखो बेटा, कंप्लेंट्स ऑफ पेनफुल क्रैक्स एट द कॉर्नर्स ऑफ हिज माउथ. एट द कॉर्नर्स ऑफ हिज माउथ. आपको यहीं से पकड़ लेना चाहिए था. क्या है ये? विटामिन B2 डेफिसिट. क्या है ये? क्या किस चीज की डेफिशिएंसी है? विटामिन B2, राइबोफ्लेविन. ओके, देन व्हाट इज द बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ द डेफिसिट विटामिन? बोलो, क्या काम करता है विटामिन B2? ठीक बोला किसी ने? ठीक बोला. यस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यस. ये तो एक काम है बेटा, 2-3 और है इंपॉर्टेंट, मेजर. हाँ, क्या? एसेंशियल फॉर, ठीक है कह लेंगे यार, वो तो सभी होता है. वो तो फिर तो थायमीन को भी कह ले, गलत नहीं है, बट थोड़ा और रिफाइन इट मोर. वो हो तो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन. नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ दिस डेफिशिएंसी? हाउ वुड यू कंफर्म? अब छोड़ो क्या कंफर्म करोगे यार, अभी आगे पहले आंसर ही देख लो तुम लोग, तुमको समझ ही नहीं आएगा वरना चल क्या रहा है. द मोस्ट लाइकली डेफिशिएंसीज विटामिन B2, राइबोफ्लेविन. कौन सा? राइबोफ्लेविन. विटामिन B2, विटामिन B2. Which causes cheilitis, glossitis and seborrheic dermatitis like lesions. What is glossitis? क्या होता है glossitis? टंग में. Yes, that is glossitis. बेटा glossitis भी इसी कमी से होता है. हालांकि that angular fissure, this one ना, this is not that common. Glossitis is more common. जहाँ आपने glossitis सुना ना, जहाँ पर भी सीधा विटामिन B2. दोबारा नहीं सोचना. ओके, जहां ग्लोसाइटिस आया विटामिन B2, राइबोफ्लेविन. 1 सेकंड और नहीं लगाना बेटा सोचने में. देन राइबोफ्लेविन इज अ प्रीकर्सर ऑफ FMN,
flavin mononucleotide and FAD, flavin adenine dinucleotide, which are essential for oxidation reduction reaction in metabolic pathways, particularly in electron transport chain. ETS के अलावा कहीं होता है बेटा FAD यूटिलाइज्ड? किस साइकिल में FAD यूटिलाइज होता है? यस, गुड, TCA साइकिल। TCA साइकिल से बेटा NAD जनरेट नहीं होता, TCA से FADH2 ही जनरेट होता है। कौन से स्टेप में? सक्सेनाइल डिहाइड्रोजिनेज से जब सक्सेनेट बनता है, इन दैट स्टेप। देन कॉमन कॉजेज इंक्लूड inadequate dietary intake, example alcoholism or poor nutrition. One more reason to stop alcohol. बेटा थायमीन तो ब्लॉक कर ही रहा है, it is also blocking the absorption of riboflavin. किसका? Riboflavin. Malabsorption syndromes, example celiac disease. ये किसने सुना है? celiac disease, किसी ने सुना है? celiac disease. This is not one here, but in Western countries, especially USA and Canada, it is very common there. Very, very common there. यहाँ पे इतना प्रेवलेंट नहीं, शायद आपको आपकी सर्विस में यहाँ पे इक्का दुक्का केस मिले, हो सकता है वो भी ना मिले, तो बेटा वहाँ बहुत कॉमन है सीलिएक डिजीज। क्या होता है ना बेटा, इसमें जो विलाई होती है ना आपकी इंटेस्टाइनल विलाई, इट स्टार्ट्स टू फ्लैटन आउट, देन एब्जॉर्प्शन इट बिल्कुल हो ही नहीं पाता, आप कुछ भी खाएंगे इट वोंट गेट एब्जॉर्ब। एग्जैक्ट रीजन इज स्टिल डिबेटेड। आई हैव the last which I have read na, some say that it is due to lifestyle disease and some also attribute autoimmune antibodies to that. जैसे हाशिमोटोज होता है ना बेटा, हाशिमोटोज सिंड्रोम, हाशिमोटोज डिजीज, या इवन डायबिटीज टाइप 1 बेटा, जिसमें होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के खिलाफ वो बन जाती है एंटीबॉडीज, समथिंग लाइक दैट ओनली। ठीक है, एग्जैक्ट रीजन इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, बट इट इज ब्रॉडली बिलीव्ड दैट आइदर इट इज ड्यू टू एंटीबॉडीज, ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज, ओके, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लेकिन ये यहाँ नहीं है। देन क्रॉनिक डायरिया, इंक्रीज्ड डिमांड, एग्जाम्पल प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। लेट अस से कोई लड़की मान लो या कोई विमेन दिन में 3 रोटी खाती है, 1 कटोरी सब्जी खाती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, नाउ शी इज प्रेग्नेंट, वो भी 3 रोटी और 1 कटोरी सब्जी खा रही है, बेटा अब थोड़ी काम चलेगा। नाउ शी नीड्स इंक्रीज डाइट, तो अगर वो डाइटरी मॉडिफिकेशन उसकी डाइट में नहीं होगा, शी विल इवेंचुअली बिकम विटामिन B2 deficit. Then drug interactions, example prolonged use of chlorpromazine, tricyclic antidepressants. ड्रग इंटरेक्शंस, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं बेटा जो इनहिबिट कर देती हैं अपटेक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट इन इंटेस्टाइन ऐसा नहीं होता कि जिस ट्रांसपोर्टर से ग्लूकोज आ रहा है बेटा उसी से थायमीन आ जाएगा, उसी से अमाइनो एसिड आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। देयर आर स्पेसिफिक सेक्शंस इन इंटेस्टाइन, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स which transport or absorb all these things. तो मान लो अगर कोई ड्रग किसी डिजीज को ट्रीट कर रही है बट साइमल्टेनियसली इट इज ब्लॉकिंग दैट ट्रांसपोर्टर और हैम्परिंग इट्स एक्टिविटी, तो आपको इसके डेफिशिएंसी सिंड्रोम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम देखने को मिल जाएंगे। सो ऑलवेज वी शुड यूज ड्रग्स केयरफुली, ओके, केयरफुली। So what is the difference between a medicine and drug? पता है, 2 चीज़ होती है। किसी किसी के लिए बेटा मेडिकेशन लिखते हैं, किसी किसी के लिए हम ड्रग्स लिखते हैं। क्या फ़र्क होता है पता है? नहीं पता? नहीं पता? देख, दोनों को यूज़ करता है साइड बाय साइड, तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा।
मेडिकेशन में और ड्रग्स में बेटा फ़र्क होता है। आज घर जाइएगा और उसे देखिएगा क्या फ़र्क होता है। जब आपके पास वाइवा में जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो बेटा एग्जामिनर फिर इन्हीं चीज़ों पे आ जाता है। फिर जब ये भी नहीं होता, फिर वो यही पूछता है कहाँ से हैं आप, घर में कितने लोग हैं, पापा क्या काम करते हैं, फिर वो इस पे आ जाता है। ठीक, डायग्नोसिस कंफर्मेशन बेटा कंफर्म कैसे करते हैं? क्लिनिकल डायग्नोसिस बेस्ड ऑन सिम्टम्स, बेस्ड ऑन सिम्टम्स। B2 की डेफिशिएंसी बेटा कंफर्म कैसे होती है? मेजरमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एक्टिविटी, एरिथ्रोसाइट ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एक्टिविटी, a functional assay, then urinary riboflavin excretion test, low in deficiency। ठीक, कौन कौन से 2 टेस्ट होते हैं? पढ़ो। एरिथ्रोसाइट ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एक्टिविटी, और दूसरा कौन सा बेटा? यूरिनरी राइबोफ्लेविन एक्सक्रीशन टेस्ट। दीज आर फॉर लैब कंफर्मेशन, फॉर लैब कंफर्मेशन। लेकिन अगर आप किसी को देखेंगे टंग ऐसे राउंडेड हो रखी है, बिल्कुल मेजेंटा और ऐसे पर्पलिश हो रखी है, तो साफ पता चल रहा है इट इज ग्लोसाइटिस। यहाँ पे क्रैक्स हैं, ठीक, आपको साफ पता है इट इज B2 डेफिसिट। तो दीज आर साइंस फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक। बट स्टिल अगर आपको कंफर्म करना है तो यू कैन डू दीज लैबोरेटरी टेस्ट, आपके हाथ में कंफर्म रिपोर्ट आ जाएगी। देन ट्रीटमेंट, ओरल राइबोफ्लेविन सप्लीमेंटेशन 5 to 10 mg पर डे, ठीक। करेक्शन ऑफ अंडरलाइंग कॉज एंड डाइटरी का। अंडरलाइंग कॉज का मतलब क्या समझे यहाँ पे बेटा? मान लो इफ अ पर्सन इज वेरी क्रॉनिक एल्कोहलिक, क्या है, बहुत शराब पीता, तो बेटा राइबोफ्लेविन का सप्लीमेंट तो दो गई, लेकिन उसको बोलो आज से शराब भी बंद कर। दैट इज करेक्टिव मेजर, दैट इज करेक्टिव मेजर, क्योंकि एल्कोहल इज ऑल्सो ब्लॉकिंग राइबोफ्लेविन एब्जॉर्प्शन, राइबोफ्लेविन एब्जॉर्प्शन along with थायमीन। इतनी जल्दी भूल गए? अभी तक क्या देखा हमने? अल्कोहल किस किस का एब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर रहे हैं इंटेस्टाइन से बेटा? थायमीन एंड राइबोफ्लेविन। थायमीन के मेल एब्जॉर्प्शन से क्या हो रहा है? वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी अनट्रीटेड ट्रांसलेटिंग टू वर्निकेज-कोरसकॉफ सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट केस पढ़िए इसे जरा। विटामिन ए डेफिशिएंसी, बहुत बढ़िया। तुम लोगों को हाथ पकड़ के खड्डे में डाल दो ना, तुम लोग गिर जाओगे। ये क्या लिखा है? ग्लोसाइटिस है, खत्म करो। विटामिन ए, तुम लोगों को भी क्या बोला था मैंने? जहां ग्लोसाइटिस दिखे बस B2 डेफिशिएंसी, बात खत्म। अरे अंधेरे में तो कई बार मुझे भी दिखना बंद हो जाता, और बताओ विजन में आ जाती है दिक्कत। फिर मैंने तो ऐसे लेजेंडरी लोग देखे हैं, उन्हें तो अंधेरे में सुनाई देना भी बंद हो जाता है। ये देखो, व्हाट इज द लाइकली कॉज ऑफ हर सिम्टम्स, हाउ डज राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट टू इट, लिखा भी है नीचे। रोज साबित करेंगे, वी आर द डम बेस्ट, ढूंढ के लाओ हमसे बड़ा। और नीचे देखो, व्हाट डिफरेंशियल डायग्नोसिस शुड बी कंसिडर्ड, हाउ वुड यू मैनेज दिस पेशेंट, वन बाय वन। देखो यहाँ, द पेशेंट इज लाइकली सफरिंग फ्रॉम राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी exacerbated by the patient by pregnancy and a strict vegetarian diet without dairy intake, she is pregnant। इसका मतलब क्या है बेटा? राइबोफ्लेविन की डिमांड बढ़ गई है, राइबोफ्लेविन की डिमांड बढ़ गई है, बट शी इज नॉट डूइंग हर डाइटरी चेंजेस, जितना उसे रिक्वायरमेंट है उतना नहीं ले रही है। एंड ऑल्सो शी इज नॉट टेकिंग एनी डेयरी इंटेक, यानी कि दूध घी कुछ नहीं।
जिससे वो नाइट ब्लाइंडनेस वाले सिम्टम्स आ रहे थे। कौन से? नाइट ब्लाइंडनेस वाले सिम्टम्स। समझ आई बात? एक बात खुद सोचो जरा, तुमको अगर हम एक केस दें, एक यूरिन सैंपल दें जिसमें रिड्यूसिंग शुगर भी पॉजिटिव है, ठीक, फॉर एग्जांपल सोचना बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट भी पॉजिटिव है, बेटा उसका डायग्नोसिस क्या निकलेगा? दैट मीन्स द पेशेंट इज डायबिटिक, पेशेंट इज डायबिटिक, बट इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस ना, इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। हो सकता है इट कैन बी ड्रग इंड्यूस्ड ऑल्सो, इट कैन बी ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलाइसिस ऑल्सो, लेकिन उस केस में फिर आपको बाइल सॉल्ट नहीं मिलेंगे, सिर्फ बाइल पिगमेंट मिलेंगे। सोचा करो, एक जो पढ़ते रहते हो ना, एक ही चीज़ बार बार होती रहती है, बेटा डू नॉट गेट यूज टू दैट थिंग, ऑलवेज बी रेडी फॉर अ न्यू थिंग। ये केस मैंने दूसरा राइबोफ्लेविन का इसलिए डाला, वरना इसमें 2 केस लगते नहीं है, थायमीन के जरूर 2 केस बनते हैं। देखो आगे, राइबोफ्लेविन is essential for iron metabolism and its deficiency can lead to impaired hemoglobin synthesis and normocytic normochromic anemia। क्या होता है नॉर्मोसाइटिक? क्या होता है? Good. It is also required for activation of vitamin B6, which is essential for heme synthesis. Which one is vitamin B6? Pyridoxine. It is pyridoxine. Succinyl coenzyme A condenses with किसके साथ? एक अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन, किसके साथ? ग्लाइसिन, टू फॉर्म डेल्टा अमाइनो लेव्युलोनिक एसिड, डेल्टा अमाइनो लेव्युलोनिक एसिड। और बेटा उसमें B6 रिक्वायर्ड होता है, और B6 को एक्टिवेट करने में हमें किसकी मदद चाहिए? विटामिन B2, विटामिन B2, it is required in activation of B6. Then differential diagnosis include iron deficiency anemia, ruled out by normal ferritin. आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बेटा एनीमिया इंड्यूस नहीं है। क्यों? बिकॉज फेरिटिन लेवल्स आर नॉर्मल, फेरिटिन लेवल्स आर नॉर्मल। क्या हुआ बेटा, डाउट है कोई? यू आर लुकिंग अ बिट कंफ्यूज ना। What is the meaning of better differential diagnosis? Tell me first. आपको एक ही सिम्टम्स बहुत सारी पैथोलॉजीज में मिल सकते हैं, ठीक? एक ही सिम्टम्स बहुत सारी पैथोलॉजीज में मिल सकते हैं। लाइक अभी यहाँ पे एनीमिया है, इट इज़ ड्यू टू B2 डेफिशिएंसी, ठीक? बट एनीमिया कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन ऑल्सो। तो हमें कैसे पता चलेगा दैट इट इज़ ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी और B2 डेफिशिएंसी? इसमें हमें फ़र्क करना है, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से क्यों नहीं है यहाँ? देखो, क्योंकि फेरिटिन लेवल्स आर नॉर्मल, फेरिटिन लेवल्स आर नॉर्मल, फेरिटिन लेवल्स आर नॉर्मल। घट जाते हैं बेटा जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है। देन विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, एलिवेटेड MCV। व्हाट इज MCV? मीन कॉर्पस्कुलर क्या? वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। आई थिंक ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, मैं तो भूल गया हिमैट के कितने पैरामीटर्स होते थे, पर मुझे याद आ रहा है। आई थिंक इट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू MCV। माइक होती है ना 30-32 होती है शायद, हाँ इट इज़ बिटवीन 32 to 35-36 ऐसे ही होती है, फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन वो तो 4-5 साल हो गए ये सब छोड़े हुए। फोलेट डेफिशिएंसी, नेक्स्ट इज फोलेट डेफिशिएंसी। कौन सा विटामिन होता है बेटा? फोलेट, फोलिक एसिड। कौन सा होता है? B9, यस B9। और मैंने क्या बताया था? B9 and B12। कौन से? B9 and B12 एक्ट्स टुगेदर इन टेंडन, एक साथ काम करता है ये।
यानी कि B9 बेटा जिस पे काम कर रहा होगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस पे B12 भी एक्ट कर रहा होगा, और जो काम B12 एक्सेलरेट कर रहा है that would be with the help of B9. Okay, these are like Karan Arjun of water soluble vitamins. Folate deficiency also presents with macrocytosis. Okay, then diabetic neuropathy, unlikely given her diet and pregnancy. Management, riboflavin supplementation कितना देखो 10 to 15 mg per day orally. Nutritional counseling to include riboflavin rich plant based sources like mushrooms, almonds and fortified cereals. Then monitor anemia and neuropathic symptoms over time. इसमें एक चीज देखो, आप पता कहाँ फंसे, ये देखो ब्लरी विजन एट नाइट, कहाँ पे ब्लरी विजन एट नाइट. मुझे नहीं लगता लास्ट तक किसी ने केस पूरा पढ़ा भी होगा. ट्रॉफिक ग्लोसाइटिस. सिंस शी इज सफरिंग फ्रॉम ग्लोसाइटिस, दिस कंफर्म्स विटामिन B2 डेफिशिएंसी. विटामिन बेटा ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आती है तो सिर्फ एक कार्डिनल सिम्टम हमें देखना है. कौन सा पता है? कौन सा? विच सिम्टम? मेपल सिरप यूरिन डिजीज, यानी कि यूरिन में से बेटा वो बर्न्ड शुगर वाली स्मेल आती है. किसकी? बर्न्ड शुगर स्मेल फ्रॉम यूरिन. ब्रांच चेन अमाइनो एसिड. फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है बेटा? माउजी ऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन. देन टायरोसिनीमिया का क्या कार्डिनल सिम्टम होता है बेटा? टाइप 1 कैबेज लाइक ऑर्डर, कैबेज लाइक ऑर्डर. एंड दूसरा क्या होता है? हेपेटोमेगैली, जॉन्डिस. हेपेटोमेगैली एंड जॉन्डिस. फिर उसके बाद तीसरा कौन सा था? एल्केप्टोन्यूरिया. कौन सा? एल्केप्टोन्यूरिया. इसका डायग्नोसिस सबसे इजी होता है. कार्डिनल सिम्टम क्या होता है? ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन अपॉन स्टैंडिंग. आप उसे रख दीजिए बाहर ओपन में, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड टर्न्स ब्लैक. इमीडिएटली नहीं, ओवर टाइम. उसी तरह बेटा यहाँ पे इस केस में आपने क्या देखना है? This thing only, atrophic glossitis. That's it, khatam. The person is suffering from B2 deficiency, riboflavin deficiency. हो जाएगा याद इतना? ऐसा मुझे उम्मीद करना. कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई. चलो नेक्स्ट केस देखो बेटा. A 45-year-old male, known alcoholic, presents to the OPD with complaints of chronic diarrhea, skin lesions on sun-exposed area, and forgetfulness over the last few months. On examination, he has hyperpigmented, rough, scaly skin over his hands and neck. His tongue appears beefy red, and he seems confused during history taking. अच्छा, B1 हो गया, B2 हो गया, अब ये तो B3 ही होगा. इट्स माई रिक्वेस्ट, डू नॉट जंप इमीडिएटली टू B3. एकदम से B3 के डायग्नोसिस पे मत आओ. बोलिए क्या डायग्नोसिस होना चाहिए इसका? व्हाट शुड बी द डायग्नोसिस? देखो आंसर यही लिखा हुआ है, आंसर यही लिखा हुआ. क्या लग रहा है? एक बार फिर सोचो यार, बोलो. B3 क्यों? B3 क्यों है? बोलो. यस एग्जैक्टली, यस. ये देखो, क्रॉनिक डायरिया, स्किन लेजन्स और सन एक्सपोज्ड एरिया, यानी कि एंड फॉरगेटफुलनेस ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया. द 3 Ds फॉर विटामिन B3 कौन कौन से होते हैं? डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया. बेटा सीधा कोई नहीं बताता. क्रॉनिक डायरिया, स्किन लेजन्स ऑन सन एक्सपोज्ड एरिया एंड फॉरगेटफुलनेस ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स. इसीलिए बेटा यहाँ पे लिखा है नॉन अल्कोहलिक, आप ताकि गिरो वो B1 वाले गड्ढे में गिरो आप. अच्छा खुद सोचो, जो आदमी शराब पीता है वो खाली B1, उसको खाली B1 की ही डेफिशिएंसी होगी. ठीक, जो बंदा नहीं पीता उसे नहीं होगी, उसे भी होगी. वाई आर यू मेकिंग इट अ स्टीरियोटाइप दैट इफ इट, अगर यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक लिखा है तो B1 ही होगा.
एग्जैक्टली माय पॉइंट, डू नॉट मेक स्टीरियोटाइप्स इन क्वेश्चंस बेटा, क्वेश्चंस को रटो मत, क्वेश्चंस को समझो। जैसे उन दोनों ने वो चीज निकाली, वो जो लास्ट में बैठे हैं, दैट क्रॉनिक डायरिया, स्किन लेजन्स ऑन सन एक्सपोज एरिया एंड फॉरगेटफुलनेस ओवर द लास्ट फ्यू मंथ, दैट इज डिमेंशिया। उन दोनों ने वो बात पकड़ी। फिर ये देखो, he has hyperpigmented skin, rough scaly skin over his hands and neck. ये बेटा और नायसिन की डेफिशिएंसी का सिम्टम होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, दैट कैसल्स नेक सिंड्रोम। कौन सा? कैसल्स नेक सिंड्रोम बेटा, ये B3 की डेफिशिएंसी में मिलता है ये कैसल्स नेक सिंड्रोम। ये एक और हिंट था इसमें। चलो आगे देखते हैं। What is the most likely diagnosis in this patient? आंसर क्या है बेटा? पेलेग्रा, due to niacin B3 deficiency, vitamin B3, vitamin B3। नोबुरुन बेटा, B3 की एक्टिव फॉर्म क्या होती है? हाँ, यू कैन से NAD बेटा, हाँ, NADP and NADPH, simple, simple, NAD, NADP and NADPH. Then what are the characteristic clinical features of pellagra? Answer: classical triads of 3 Ds: diarrhea, dementia, dermatitis and dementia. Diarrhea, dermatitis and dementia, the 3 Ds, 3 Ds. समझ आ रहा है रुपजित? A fourth D, death occurs if untreated. Death occurs if untreated. What are the risk factors for developing pellagra? Risk factors for developing pellagra. Once again I am telling you बेटा the risk factors, यानी कि जो लोग अपनी लाइफस्टाइल या किन्हीं आदतों की वजह से ज़्यादा रिस्क पे होता है। पेलेग्रा तो बेटा किसी में भी हो सकता है, डेफिशिएंसी ओवर द टाइम डेवलप हो जाएगी तो हो ही जाएगा, चाहे डाइटरी रेस्ट्रिक्शन हो या कुछ हो, बट हु आर एट मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग पेलेग्रा? देखो, वंस अगेन क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, तो तीसरी कैजुअलिटी शराब के यहाँ से आई। पहली कौन सी थी? कौन सा था ये? B1। उसके बाद कौन सा था ये? Now which is the third one? Niacin. B, malnutrition seen in poverty, anorexia and restrictive diets. Carcinoid syndrome, ये और कहाँ सुना था? अच्छा, लिखा है आगे। Excessive tryptophan conversion to serotonin, reducing niacin availability. Niacin availability, बेटा केस देखा था ना, ट्रिप्टोफन की अवेलेबिलिटी नहीं थी उस केस में। इट वॉज इंड्यूसिंग पेलेग्रा, इट वॉज नॉट हार्टनप्स डिजीज, इट वॉज पेलेग्रा। ठीक है, उसमें ट्रिप्टोफन का कैटाबॉलिज्म जहाँ जहाँ हो रहा था उसमें ये एक सीरोटोनिन पाथवे भी था। कौन सा पाथवे? सीरोटोनिन पाथवे। ड्यू टू दिस कार्सिनॉइड सिंड्रोम, ट्रिप्टोफन वॉज मोर चैनलाइज्ड इनटू सिंथेसाइजिंग सीरोटोनिन, सिंथेसाइजिंग serotonin. So less and less tryptophan was available for synthesizing niacin. Synthesizing niacin. Serotonin बनता जा रहा है, ज़रूरत है नहीं है हमें, उससे मतलब नहीं, बस वो बनता जा रहा है। And less tryptophan is available for niacin synthesis, जिससे niacin की कमी होती जा रही है बॉडी में। तो बेटा ये दोनों जगह आता है, इसको याद रखना। ठीक है, वाइवा में बेटा बोलने के लिए अच्छा पॉइंट होता है ये। देन हार्टनप्स डिजीज, डिफेक्टिव ट्रिप्टोफन एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन एंड किडनीज, डिफेक्टिव मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफन फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड किडनीज। क्यों होता है ये? क्योंकि बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? वेयर द absorption or the transporter is defective. Transporter is defective. इसीलिए बेटा ट्रांसपोर्टर जब डिफेक्टिव है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। कहाँ से? इंटेस्टाइन से और किडनी से। किसका? ट्रिप्टोफन का। किसका? ट्रिप्टोफन का। किसमें? हार्ट नर्व्स डिजीज। किसमें? हार्ट नर्व्स डिजीज। Then prolonged isoniazid therapy depletes pyridoxine needed for niacin
synthesis. When we give isoniazid therapy, it depletes pyridoxine. Depletes pyridoxine. What is pyridoxine? B6. Yes, B6. Vitamin B6. तो बेटा पायरिडॉक्सिन कंज्यूम होता जाएगा तो भी नायासिन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, या होगा तो कम होगा. Then what is the biochemical basis of niacin deficiency? Niacin is a precursor for NAD, NADP, which are essential for cellular respiration and energy metabolism. इसमें डाउट किसी को? इस लाइन में डाउट? NADP बेटा कहाँ लगता है? NADP इट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. कितने ATP मिलता है बेटा एक NADP से? 2.5. Similarly, like riboflavin, it is utilized in oxidation reduction reaction also. Oxidation reduction reactions. It is synthesized endogenously from tryptophan, requires vitamin B6 as cofactor. Deficiency impairs ATP production, leading to symptoms in high energy requiring organs. Example, brain, skin and gut. थायमिन की डेफिशिएंसी से बेटा एनर्जी यूटिलाइज या प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो पा रही थी. ठीक, कहाँ पे? जहाँ पे ज़्यादा मेटाबॉलिक डिमांड थी नेचुरली, वहाँ पे उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा. वंस अगेन ब्रेन. यहाँ पे बेटा अगर नायासिन का सिंथेसिस नहीं होगा तो NADP नहीं बनेगा तो जहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे NADP से आपको एनर्जी मिल नहीं पाएगी, तो वहाँ पे इफेक्ट सबसे पहले आएगा. ठीक है, लाइक ब्रेन विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. हाँ, वेरी गुड, बैठ जाओ. विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? हाँ, रूपजीत. स्किन. How do you confirm the diagnosis of niacin deficiency? Niacin deficiency का diagnosis कैसे होगा? Clinical features are highly suggestive, like urinary N-methyl nicotinamide level low in deficiency. ठीक? Then plasma niacin levels, it is rarely done. Main is this one, urinary N-methyl nicotinamide level. Then what is the treatment for this condition? Oral niacin supplementation. कितना? 50 से 500 mg per day. मेरे को नहीं, उधर देख भाई. 50 to 500 mg per day. Then correction of underlying cause. Example alcohol cessation, dietary improvement, and supportive care, hydration, treatment of diarrhea, and neuropsychiatric symptoms. ठीक है, डायग्नोसिस बेटा कंफर्म होगा आपका ज्यादातर क्लिनिकल फीचर से. किससे? क्लिनिकल फीचर से. नायासिन की डेफिशिएंसी के बेटा क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या थे? अरे द 3Ds, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस. खत्म. इतनी देर लगती है? Next case, a 30-year-old male presents to the OPD with complaints of persistent fatigue, irritability, numbness and tingling in his feet. He mentions that he has been experiencing frequent burning sensation in his legs, especially at night. On further questioning, he reports a history of highly restrictive diet due to self-imposed weight loss regimen. Laboratory investigations show normal blood count but reveal mild hypoglycemia and increased urinary excretion of ketone bodies. बोलिए क्या डायग्नोसिस होना चाहिए? आगे है इसमें. बी कैसे पता चला? नमनेस. क्या थायमीन की डेफिशिएंसी में नमनेस नहीं होती? हाँ, यस. क्या है बेटा इसका फीचर? व्हाट इज द क्लासिकल फीचर ऑफ दिस? नॉट नम्बनेस. शी सेड इट करेक्ट. यस, शी इज करेक्ट. टिंगलिंग सेंसेशन. कौन सी? सेंसेशन इज वेरी पेक्यूलियर रिगार्डिंग B5.
ये देखो, व्हाट इज द बायोकेमिकल रोल ऑफ विटामिन B5 इन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म? सो द डायग्नोसिस इज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम B5 डेफिशिएंसी. कौन सा? B5 डेफिशिएंसी. बेटा B5 की डेफिशिएंसी है इसमें. कैसे डायग्नोस हुआ? इन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? देखो, विटामिन B5 ऑल्सो नोन एज पैंटोथेनिक एसिड, ठीक, इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम है. किसका? कोएंजाइम ए. किसका? कोएंजाइम ए. बेटा हर दूसरी जगह नाम आता है कोएंजाइम ए. ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड रिएक्शन हैज दिस थिंग, कोएंजाइम ए. एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसाइल कोएंजाइम ए. आज कार्निटिन अगर पढ़ा था बेटा, उसमें भी कोएंजाइम ए होता है. कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में HMG कोएंजाइम ए. कहाँ नहीं होता? सोचो. एंड एसाइल कैरियर प्रोटीन्स, बोथ ऑफ विच आर एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. नंबर 1 ये देखो बेटा, कौन सा है? TCA साइकिल. कौन सा? TCA साइकिल. Coenzyme A is involved in the conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A by pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase. कौन सा? Pyruvate dehydrogenase. इसमें एक और आपका सप्लीमेंट लगता है. कौन सा? Pyruvate dehydrogenase में अभी पढ़ा है पीछे. B1, विटामिन B1, विटामिन B1. कौन सा? थायमीन. थायमीन लग रहा है, कोएंजाइम ए लग रहा है, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड लग रहा है. 2 लग रहे हैं बेटा. देन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. कोएंजाइम ए इज रिक्वायर्ड फॉर फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस वाया एसाइल कैरियर प्रोटीन्स. फैटी एसिड्स का बेटा कैसे होता है मेटाबॉलिज्म? हम उसे डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं कर सकते. You cannot directly consume fatty acids. So what happens is the process is known as beta oxidation. कौन सा? बीटा ऑक्सीडेशन. मैंने आप लोगों को बताया था, शायद कल थी ना क्लास, बताया था. Let us assume that 16 कार्बन स्केलेटन है हमारे पास फैटी एसिड का. कितना? 60. तो बेटा इसका बीटा ऑक्सीडेशन जब होगा ना, जब एक साइकिल पूरी चलेगी, लेट अस से पामेटिक एसिड 16 कार्बन वाला, तो बेटा 2 कार्बन चेन में से रिमूव हो जाएंगे. कितने? 2 कार्बन. और उन 2 कार्बन से क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम. क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम. क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम. और बेटा वो एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ जाएगा? कहाँ कंज्यूम होता है एसिटाइल कोएंजाइम में? TCA साइकिल में. किसमें? TCA साइकिल. अब हमारे पास पीछे 14 कार्बन की चेन और बची है. कितने की? 14 कार्बन मोर. 2 और निकलेंगे और एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा. कितने बच गए? 12. देन लाइक दैट 10, 8, 6, 4. जब बेटा आखिर में इसका हो जाएगा ना, विल गेट 2 एसिटाइल कोएंजाइम एंड बोथ वुड गो टू TCA साइकिल फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म. दिक्कत आ जाती है बेटा जब ऑड चेन होता है, जब लास्ट में 3 बच जाता है. तो उसमें कौन सा लगता है बेटा? B7 लगता है कि B9 लगता है? B9. Then synthesis of cholesterol, steroid hormones and acetylcholine. Coenzyme A is necessary for biosynthesis of cholesterol. अभी जो आपको टर्म बोला ना बेटा, HMG कोएंजाइम A. कौन सा? HMG coenzyme A. Beta, this is a step or you can say the starting material for cholesterol synthesis. HMG coenzyme A. HMG coenzyme A. Beta starting material होता है एकदम. Then which serve as necessary for biosynthesis of cholesterol. तो बेटा coenzyme A से क्या बन रहा है? कोलेस्ट्रॉल. क्या बन रहा है? कोलेस्ट्रॉल. और कोलेस्ट्रॉल से आगे क्या बनता है? स्टेरॉयड हार्मोन्स. कौन से? स्टेरॉयड हार्मोन्स. और क्या बनता है? योर माइलिन शीथ. माइलिन शीथ. और क्या बनता है बेटा? बाइल सॉल्ट्स. क्या बनते हैं? बाइल सॉल्ट्स. कोलेस्ट्रॉल से कोई हार्मोन बनता है? नहीं बनता. डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस. व्हिच वन? डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस.
Coenzyme A participates in phase 2 conjugation reactions such as acetylation. बॉडी में बेटा जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, ये कहाँ पे होता है? ज़्यादातर लीवर में होता है. मेजॉरिटी ऑफ इट इज परफॉर्म्ड इन लीवर. सम ऑफ इट ऑल्सो गोज ऑन इन एड्रिनल कॉर्टेक्स, बट दैट मैकेनिज्म इज डिफरेंट. मेजॉरिटी इज डन इन लीवर. तो बेटा इसके 2 फेज होते हैं, एक्चुअली 3 होते हैं. तीसरा इतना मेजर नहीं होता, वो रेयरली ही होता है. मेजर 2 होता है. क्या सबसे पहला क्या होता है बेटा? फेज 1. देन सेकंड वन इज फेज 2. फेज 1 में क्या होता है? लाइक कोई हार्मफुल मटेरियल है ना, लेट अस से बेंजीन. बेंजीन क्या है? कार्सिनोजेनिक होती है. क्या होती है? कार्सिनोजेनिक. किसी ने गुस्से में आके मान लीजिए बेंजीन पी ली, अब वो मर तो जाएगा, लेकिन बॉडी उसे फिर भी कुछ हद तक डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करती है. कैसे? सबसे पहले बेंजीन पे फेज 1 में एक फंक्शनल ग्रुप अटैच करने की बॉडी कोशिश करती है. ज़्यादातर क्या होता है बेटा? वो OH ग्रुप होता है. तो उससे क्या बनेगा? फिनॉल. क्या बनेगा? फिनॉल. फिर फेज 2 में क्या होता है बेटा? फेज 2 में जो फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है ना, कुछ भी हो सकता है मिथाइल हो, उसको बेटा कंजुगेट कर दिया जाता है. उस फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट कर दिया जाता है ताकि इसको यूरिन में एक्सक्रीट किया जा सके. देखो बेटा, यूरिन में आप बेंजीन सीधा तो एक्सक्रीट नहीं कर सकते ना, बिकॉज बेंजीन इज नॉट वाटर सॉल्युबल. आप उसको फिनॉल में कन्वर्ट करेगा लीवर, एंड देन इट विल कंजुगेट विद सम अदर फंक्शनल ग्रुप इन फेज 2, एंड देन इट विल एक्सक्रीट. तो ये वो फेज 2 है इन दैट डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन. ठीक है, तो इसमें भी बेटा कोएंजाइम में आपका लग रहा है. क्या लग रहा है? कोएंजाइम में. कोएंजाइम इज सच ए इंपॉर्टेंट थिंग. बाकी सब काम तो कर ही रहा है, इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन डिटॉक्सिफिकेशन. एक चैप्टर आएगा आगे, देखना, उसमें ज़ीनोबायोटिक्स, उसमें यही सब है. फेज 3 रेयर होता है. मैंने बोला ना फेज 3 रेयर होता है, उसमें ग्लूटाथायोन वगैरह होता है. इंपॉर्टेंट बट performed very rarely. Then what are the primary biochemical consequences of B5 deficiency? Biochemically, B5 deficiency leads to impaired energy metabolism. Deficiency affects the pyruvate dehydrogenase complex and alpha ketoglutarate dehydrogenase, leading to decreased ATP production. बेटा ये वही 2 एंजाइम है जहां पे थायमीन भी काम कर रहा था. क्या काम कर रहा था? थायमीन भी काम कर रहा था. और तीसरा कौन सा था? ट्रांसकीटोलेज. कौन सा? ट्रांसकीटोलेज. ये देखो, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स. कौन सा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स. कितने एंजाइम होते हैं, कितने कोएंजाइम होता है इसमें? बोलिए. 8 होते हैं टोटल. कितने उनमें से एंजाइम होते हैं और कितने कोएंजाइम्स होते हैं? टोटल देयर आर 8 कंपोनेंट्स. हाउ मेनी ऑफ दोज आर कंस्टिट्यूटेड एज एंजाइम्स और कितने बेटा कोएंजाइम्स होते हैं पीडीएच कॉम्प्लेक्स में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स? हाँ, यस, वेरी गुड. देयर आर 3 एंजाइम्स एंड 5 कोएंजाइम्स. 3 एंजाइम्स एंड 5 कोएंजाइम्स. गुड. तो बेटा इसके लिए आपको थायमीन तो लग ही रहा है. विटामिन B1. वी ऑल्सो रिक्वायर पेंटोथेनिक एसिड. कौन सा? पेंटोथेनिक एसिड. देन अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज ऑल्सो रिक्वायरिंग पेंटोथेनिक एसिड. इफ अगर यहाँ पे मान लो इसकी डेफिशिएंसी है या अवेलेबिलिटी कम है तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? सोचो, एसिटाइल कोएंजाइम में कम बनेगा. क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम में कम बनेगा, यानी कि TCA साइकिल में रॉ मटेरियल कम जाएगा. देन अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज. कौन सा? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज. और जितना भी एसिटाइल कोएंजाइम है बेटा TCA तक किसी तरह पहुंच गया तो बेटा वो इस स्टेप से आगे मुश्किल से बढ़ेगा. TCA साइकिल के चलने में भी दिक्कत आएगी. तो बेटा दोनों जगह पे आपका एक बॉटलनेक इफेक्ट आएगा. कौन सा इफेक्ट? बॉटलनेक इफेक्ट आएगा. होता है ना, वहाँ पे पैसेज कम हो जाता है, इसीलिए एनर्जी प्रोडक्शन कम होगी इन एब्सेंस ऑफ पेंटोथेनिक एसिड. दिस कैन कंट्रीब्यूट टू हाइपोग्लाइसीमिया. इसीलिए बेटा पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन कीटोन बॉडीज.
Then dysregulated fatty acid metabolism, reduced activity of fatty acid synthase and beta oxidation enzymes. अगर कोएंजाइम में नहीं होगा, क्या नहीं होगा? कोएंजाइम में नहीं होगा तो क्या होगा? फैटी एसिड सिंथेसिस आपका स्लो हो जाएगा, फैटी एसिड सिंथेसिस स्लो हो जाएगा। मैंने बताया ना बेटा HMG कोएंजाइम है, HMG कोएंजाइम ए। तो बेटा जब तक कोएंजाइम नहीं होगा आपके पास तो यू कैन नॉट सिंथेसाइज HMG कोएंजाइम। लीड्स टू सिम्टम्स सच एज बर्निंग फुट सिंड्रोम ड्यू टू बर्निंग फुट सिंड्रोम। किसकी वजह से? रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ फैटी एसिड सिंथेस एंड बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम्स। इसलिए वो बर्निंग फुट और टिंगलिंग की सेंसेशन आती है इन द फीट। Why? Due to defective myelin synthesis and nerve dysfunction. Due to defective myelin sheath synthesis and nerve dysfunction. Accumulation of unmetabolized fatty acid can cause hepatic steatosis. Hepatic steatosis. Okay? Neurotransmitter dysfunction. Impaired synthesis of acetylcholine result in neurological symptoms including paresthesia and autonomic dysfunction. Coenzyme A is also required in synthesis of neurotransmitter. Synthesis of neurotransmitter like acetylcholine. Acetylcholine. Reduced heme and steroid hormone synthesis leads to anemia and hormonal imbalance. Now, how does vitamin B5 deficiency contribute to patient's symptoms of fatigue, irritability and burning sensation in the legs? ये देखो बेटा important है. Fatigue and irritability due to decreased ATP production from impaired TCA cycle and fatty acid metabolism. Reduced synthesis of steroid hormones. Example cortisol may lead to stress intolerance and irritability. सबसे पहले देखो ATP क्यों कम बन रही है बेटा? Why ATP generation is low? PDH कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट स्टेप इज PDH कॉम्प्लेक्स, वहां पे नहीं बन एसिटाइल कोएंजाइम नहीं जनरेट हो पा रहा प्रॉपर जितना होना चाहिए। एंड सेकंड इज TCA साइकिल, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा स्टेप देखो बेटा, रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। बेटा स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस क्यों रुक रहा है? क्योंकि बेटा कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस हैम्पर हो रहा है। किसका? कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस। शारिक बेटा जाग जाओ, हम भी सो गए ना फाइनल में तो फिर समस्या हो जाएगी, नींद हमें भी बहुत आएगी फिर। रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये क्यों होता है बेटा? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कम हो गया है। कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कम हो गया है एंड कोलेस्ट्रॉल इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर steroid hormones. Now, why there is burning sensation in legs? Peripheral neuropathy due to impaired acetylcholine synthesis. Defective myelin synthesis due to impaired fatty acid metabolism contributes to nerve damage and sensory disturbances. आया समझ? Why there is tingling sensation in foot and burning sensation in the foot? समझ आया? क्यों नहीं आया बताओ, क्या नहीं समझ आया? ये देखो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है। क्या हो रही है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्यों? बिकॉज इम्पेयर्ड एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस, क्योंकि कोएंजाइम ए की वजह से बेटा एसिटाइलकोलिन नहीं बन पा रहा। तुमको एक चीज़ और बताते हैं, वैसे तो ये फिजियोलॉजी में बहुत आगे है लेकिन अभी सुन लो। न्यूरोट्रांसमीटर्स का बेटा काम ये नहीं होता कि वो साइनेप्स के अक्रॉस मैसेज पास करें। साइनेप्स समझते हो ना बेटा? साइनेप्स जो लास्ट में क्या होता है, वो एक्सॉन होता है ना, क्या होता है, और वहाँ से अगले डेंड्राइट तक जो मैसेज जाता है। बेटा न्यूरोट्रांसमीटर अगर आप याद करें ना, दे आर स्टोर्ड इन द सेल न्यूरॉन्स, दे आर स्टोर्ड इन द न्यूरॉन्स। बेटा अगर वो स्टोर्स डिप्लीट होने लग जाता है ना, तो न्यूरॉन्स का जो एंड होता है ना, दैट एक्सॉन नॉब, it starts to degenerate. वो मैसेज तो बेटा स्लो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बट दैट एक्सॉन ऑल्सो स्टार्ट्स टू degenerate due to insufficient neurotransmitter stores.
इसीलिए बेटा जब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर कम हो रहा है ना, एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस कम होने की वजह से, तो न्यूरोपैथी हो रही है। धीरे धीरे नर्व्स के जो सेल्स हैं बेटा वो डैमेज होते चले जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे नर्व फंक्शन जो है वो हैम्पर हो रहा है। और इसीलिए टिंगलिंग सेंसेशन जो है ना, एक बर्निंग फुट की सेंसेशन है, एक टिंगलिंग सेंसेशन वो आ रही है। समझ आया? Now, why does this patient have mild hypoglycemia and increased urinary ketones? Common sense. सोचो, जब TCA साइकिल ठीक से नहीं चल रही है तो ATP जनरेशन कम है। क्या कम है? ATP जनरेशन। तो बेटा TCA साइकिल क्या यूटिलाइज करती है? क्या यूटिलाइज करती है? एसिटाइल कोएंजाइम में। क्या यूटिलाइज करती है? एसिटाइल कोएंजाइम में। ये देखो, हाइपोग्लाइसीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम इम्पेयर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस ड्यू टू डिक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। Increased ketone production occur because of fatty acids undergo beta oxidation. Fatty acids undergo beta oxidation. But lack of coenzyme A limits complete oxidation leading to ketone accumulation. कोएंजाइम में हमारे पास इतना नहीं है कि फैटी एसिड्स जो भी आ रहा है ना बेटा उनका कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन हो सके, इसीलिए दे आर जनरेटिंग एसिटाइल कोएंजाइम में अलोंग विद कीटोन बॉडीज, इसीलिए एक्यूमुलेट हो रही है कीटोन बॉडीज। नाउ व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन कंफर्म विटामिन B5 डेफिशिएंसी? यूरिनरी पेंटोथेनेट लेवल्स, डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन सच एज डेफिशिएंसी। Then erythrocyte coenzyme A level low in severe deficiency. Serum acyl carnitine profile may show abnormalities related to impaired fatty acid metabolism. And plasma glucose and ketones hypoglycemia with ketosis supports metabolic dysfunction. ये वाला आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बेटा नहीं दे पाएगा। क्यों? सोचो, प्लाज्मा ग्लूकोज एंड कीटोन्स इन देमसेल्व्स वो विटामिन B5 की डेफिशिएंसी में घट या बढ़ नहीं सकते बेटा, वो डायबिटीज़ में भी आराम से घट या बढ़ सकते हैं। हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म भी बेटा उनको इफेक्ट कर सकता है। एड्रिनल हार्मोन्स भी उनको क्या कहना चाहिए, उनके लेवल्स को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसलिए बेटा ये चीज़ आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं दे पाएगी, ठीक है? बाकी ऊपर के तीनों ठीक है। Now, what dietary pharmacological interventions are recommended for treating vitamin B5 deficiency? Dietary source क्या है बेटा? Include whole grains, eggs, meat, dairy and legumes to replenish pantothenic acid levels. What is the nature's perfect food? किसको पता है? Nature's perfect food पता है? क्या है? Which is the nature's perfect food? Egg. कौन सा? Egg. And which is the nature's near perfect food? Near perfect. Yes, milk. Why it is near perfect? Why it is near perfect, not perfect? क्योंकि बेटा मिल्क में एक चीज़ की कमी होती है, मिल्क में आयरन नहीं होता। Milk lacks iron. Milk lacks iron. Okay. देखो, supplementation, vitamin B5, pantothenic acid, 100 to 500 mg per day can be given in deficiency states. Supportive management, if symptoms persist, treat neuropathy with B complex vitamins and pain relief measures. ठीक है? Alcoholism appears presents with irritability, depression and difficulty to coordinate. Upon further examination, he has peripheral neuropathy. His diet consists mainly of processed food and lack fresh vegetable. Laboratory investigation show elevated homocysteine level and decreased transaminase activity. तो कैसे पता लगाया? And elevated homocysteine. Laboratory investigation show elevated homocysteine level and decreased transaminase activity. So, what is the biochemical role of vitamin B6 play in? What biochemical role does vitamin B6 play in neurotransmitter synthesis? And how does its deficiency contribute to neurological symptoms? ये देखो बेटा, B6 in the form of pyridoxal phosphate (PLP). पायरोडॉक्सिन तो बेटा विटामिन का नाम है, क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन। किसका? B6 का। ठीक, B6 इट इज पैराडॉक्सिन।
लेकिन बेटा इसकी एक्टिव फॉर्म या कोएंजाइम फॉर्म कौन सी है? PLP, pyridoxine phosphate is a coenzyme for decarboxylation reactions. कौन सी reactions? Decarboxylation reactions. कौन सी reactions? Decarboxylation. What is decarboxylation? बेटा there are I think 4 reactions in biochemistry. 4 कितनी? 4 decarboxylation reactions I think which do not require PLP. Which do not require PLP. किसी को पता है वो कौन सी है? जब ये खत्म हो जाएगा ना आपका, हो ही नहीं सकता आपका वाइवा इसके बिना। हर दूसरे आदमी से ये सवाल पूछा जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। There are 3 to 4 reactions which do not require PLP बेटा। आप इसको घर जाइए और देखिए। This is a very very interesting question, very interesting. Along with what is the difference between medicines and drugs? दोनों चीज देखिए आज। Now it is essential for conversion of glutamate to GABA via glutamate decarboxylase. Glutamate decarboxylase. Glutamate to GABA. What is GABA? क्या? Yes, inhibitory neurotransmitter. कहाँ होता है ये ज्यादातर? बेटा it is inhibitory in CNS. In CNS. GABA inhibitory होता है कि excitatory होता है? Then 5-hydroxytryptophan क्या बनता है बेटा इससे? सीरोटोनिन via aromatic L-amino acid decarboxylase. L-amino acid decarboxylase. डोपा से क्या बन रहा है बेटा? डोपामीन. Then histidine से क्या बन रहा है? हिस्टामाइन. Now deficiency leads to reduced level of GABA, serotonin, causing irritability, depression and seizures. GABA, serotonin, dopamine, histamine. ये सब बॉडी में नहीं बनेंगे अगर इनका डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। किनका? ग्लूटामेट, 5-hydroxytryptophan, डोपा एंड हिस्टिडीन। और बेटा डिकार्बोक्सिलेशन के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, PLP। ठीक है, यू रिक्वायर दिस थिंग। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई बेटा तो क्या होगा? देखो आपको इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन एंड सीजर्स। Explain how vitamin B6 deficiency leads to peripheral neuropathy at biochemical level. PLP is required for sphingolipid metabolism, which is essential for myelin sheath formation. For myelin sheath formation. Deficiency disrupts sphingomyelin synthesis, impairing nerve conduction and leading to neuropathy. Additionally, decreased neurotransmitter synthesis exacerbate neurological defects. बेटा जो मैं कह रहा था देख, जब न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज होता है ना तो ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स बढ़ जाते हैं, डिफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। B6 किसके लिए रिक्वायर्ड होता है बेटा? स्फिंगोलिपिड मेटाबॉलिज्म। किसके लिए? स्फिंगोलिपिड मेटाबॉलिज्म विच आर रिक्वायर्ड फॉर नर्व इंटेग्रिटी। इसीलिए बेटा पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। क्या होती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। Next case beta, 30-year-old female presents with fatigue, weakness and pallor. Complete blood count reveals microcytic hypochromic anemia. Her dietary history indicates an inadequate intake of meat and legumes. Serum ferritin and iron levels are normal. क्या diagnosis है बेटा? ये tough question है, कैसे पता? Microcytic? Yes. ये दे। B6 is a cofactor for delta aminolevulinic acid synthase. ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। PLP लगता है बेटा। हीम सिंथेसिस के फर्स्ट स्टेप में क्या लगता है? PLP, सक्सेनाइल कोएंजाइम A एंड ग्लाइसिन। बेटा इट रिक्वायर्स PLP in heme synthesis. In heme synthesis, the rate limiting enzyme in heme biosynthesis. Deficiency leads to impaired heme synthesis resulting in microcytic hypochromic anemia despite normal iron levels. Now, why is iron therapy ineffective in B6 deficiency related anemia? Iron answer है बेटा,
Iron therapy is ineffective because anemia is due to defective heme synthesis rather than iron deficiency. आयरन पूरा है बेटा, लेकिन अगर हीम ही नहीं बनेगा तो आयरन का क्या करोगे? ठीक है, और हीम क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि B6 की डेफिशिएंसी। किसकी? B6 की डेफिशिएंसी। और जब B6 की डेफिशिएंसी होगी तो हीम क्यों नहीं बन पाएगा बेटा? बिकॉज द फर्स्ट स्टेप इन हीम सिंथेसिस क्या होता है? ग्लाइसिन प्लस सक्सेनाइल कोएंजाइम में फॉर्मिंग डेल्टा अमाइनो लेवुलोनिक एसिड, वो नहीं बन पाएगा, इसीलिए हीम सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। A 55-year-old male with history of cardiovascular disease presents with increased plasma homocysteine level. He follows a vegetarian diet and has been taken isoniazid for tuberculosis. He has vitamin B12. His vitamin B12 and folate levels are normal. क्या diagnosis है बेटा? Describe the role of vitamin B6 in homocysteine metabolism and how its deficiency can contribute to cardiovascular diseases. देखो, PLP acts as coenzyme for cystathione beta synthase, which converts homocysteine to cystathionine. थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा टफ पड़ेगा। इन द ट्रांससल्फरेशन पाथवे इन B6 deficiency homocysteine accumulates promoting endothelial dysfunction, oxidative stress and an increased risk for atherosclerosis. Now, why does isoniazid therapy predispose a patient to vitamin B6 deficiency? Answer: isoniazid forms a complex with PLP leading to its inactivation and increased excretion. It is drug-induced PLP excretion. ठीक है, मैंने कहा था ना कई ड्रग्स होती हैं बेटा, वो ट्रीट तो करती हैं पर दे interfere, I should use the word interfere, in different other metabolic pathways. Consequences: more and more PLP is excreted out of the body. Okay? This reduces the availability of PLP-dependent enzymes, resulting in symptoms such as peripheral neuropathy and increased homocysteine levels. ये केस थोड़ा हार्ड है relatively, ठीक है, और कभी कभी एक आधा केस ऐसा देख भी लेना चाहिए. You should have an eye on these kinds of cases, कभी कभी. Thank you.